system, to eliminate the doshas, as they call it. The impurities have to go. And it's the impurities that are basically responsible for the separation of consciousness and matter. It's the impurities which overshadow the functioning of those laws of nature, which are responsible for the transformation of consciousness into matter. So those impurities, removal of those impurities is the claim of Ayurveda. And Vaidya has been beautifully explaining us how by reducing matter to its broken atomic values, one could locate a sort of impulse of the unmanifest matter and its nature. What is its character? In what way we can take advantage of that nature of the broken, unmanifest atomic value. And this Ayurveda has done it in such a profound way that the administration of this level of medicine immediately produces its effect in the whole body and gives vitality to the entire nervous system, to the whole physiology, and wakes it up. That means it has the vitality to promote life from that level where life is eternal and in its non-changing value. From there it promotes. It connects the pure value of consciousness to its first expression as laws and to its transformation into matter. So enlivening that thing. So we have this knowledge in the Upaveda. This Ayurveda is one of the 4 Upavedas of the Vedic knowledge. Sufficiently about the greatness of Ayurveda. That Ayurveda enjoys. Ayurveda enjoys authenticity of its statements as Veda, pure knowledge. Pure knowledge is its own authenticity. Its expressions are the expressions of pure knowledge, the expressions of the Veda. So Ayurveda, being Veda, enjoys its absolute authenticity, gives the knowledge of what is what, and then the use of it for what effect we want to produce. Siddhis are profusely mentioned in the texts of Ayurveda. It's beautiful. All yoga is a part of Ayurveda. All Vedanta is a part of Ayurveda. All this, physical, mental, spiritual, all values, they are all part of Ayurveda. It has brought on a very authentic level the entire course of development from ignorance to complete enlightenment. From ignorance to complete enlightenment. Now it's a different thing that as any other part of Veda being lost. And this real purpose of Ayurveda to enliven immortality in the mortal. The purpose of Veda. Veda is pure knowledge. Pure knowledge pertaining to life.
Ayurveda, pure knowledge pertaining to life. Pure knowledge pertaining to life. Life having two aspects of it, unmanifest and manifest. Ayurveda, the pure knowledge aspect of life, connects the unmanifest and manifest value of life, makes the manifest blossom in its full potential. The full potential of the manifest is in the all possibility value of the unmanifest. Unmanifest is all possible. Manifest has certain possibilities, but those certain possibilities are just the expressions of the inherent all possibilities. That Ayurveda is the pure knowledge pertaining to life, unmanifest and manifest. It bridges the gulf between the unmanifest and manifest, enlightens all possibilities in a few possibilities in practical life. It just enlightens it. एक अपने यहाँ कहावत है, भय का भूत, भय का भूत, भय। ये जो रज्जू सर्प का जो है विवर्त जो है, वो जहाँ भय हुआ वहीं सर्प उत्पन्न हो गया, वही भूत हो गया, भय का भूत। उसी की चिकित्सा बताई है, भय का भूत माने विवर्त को समाप्त करो। वही भगवान ने कहा, आत्मवान बुद्धि तुम इधर हो, तुम इधर आत्मा को पकड़ो, आत्मवान होके भूत को भगाओ। वो विवर्त रूप भूत हो गया, जिससे भय, द्वितीयाद वही भयम भवति, तो वो द्वैत का जहाँ से भय उत्पन्न हो गया, सब गड़बड़ होने लगा, और जिसके कारण अग्निमांद हो गया। And the theme of Ayurveda, which is most valuable theme, which is expressed in one sutra of the yogic aspect of Ayurveda, Heyam Dukkham Anagatam, avoid the danger that had not yet come. That we know in one word, prevention. So for prevention, necessary to maintain the holistic awareness, be the lamp at the door, inside lighted, outside lighted. That is the self-referral awareness, which is one with unity, which is one with diversity at the same time. So it's a very great joy to inaugurate this course on Ayurveda, which will, on one side, develop a perfect language, a perfect literature, a perfect teaching material for all the custodians of health in the world to follow from here. अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भी विश्व स्तर पर आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए सतत प्रयत्नशील है। इस कार्य के लिए महासम्मेलन ने एक विशेष समिति का भी गठन किया। अभी इसी माह माननीय महासम्मेलनाध्यक्ष वैद्यराज श्री पंडित बृहस्पति देव जी त्रिगुणा ने पूज्य महर्षि जी के साथ अमेरिका और यूरोप के कई देशों की यात्रा की। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अनुभव किया कि वहाँ की जनता में आयुर्वेद के प्रति अत्यंत अभिरुचि एवं उत्कंठा है, और इन देशों में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार का ये उचित समय है। उन्होंने उन देशों में आयुर्वेद, विशेषतः आयुर्वेदीय स्वच्छवृत्त, तद्वृत्त, व्याधि प्रतिरोध और रसायन विधियों का प्रचार प्रसार करने के संबंध में पूज्य महर्षि जी के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने पूज्य महर्षि जी को ये आश्वासन भी दिया कि भारतीय वैद्य समाज इस पुनीत कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। माननीय महासम्मेलनाध्यक्ष जी की प्रेरणा से पूज्य महर्षि जी ने एक योजना बनाई। इस योजना का क्रियान्वयन पूर्ण सुनियोजित और सुव्यवस्थित रूप से हो तथा हम लोग आयुर्वेद के शास्त्रीय और व्यावहारिक पक्ष को प्रभावपूर्ण ढंग से विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके, उस उद्देश्य को सामने रखकर पूज्य महर्षि जी के सानिध्य में विचार विमर्श एवं रूपरेखा का निर्धारण करने के लिए आयुर्वेद के मूर्धन्य विद्वानों एवं पीयूष पानी चिकित्सक आप महानुभावों को यहाँ पधारने का कष्ट दिया है। आशा है पूज्य महर्षि जी के आशीर्वाद, माननीय महासम्मेलनाध्यक्ष जी की प्रेरणा एवं आप महानुभावों के मार्गदर्शन एवं निस्वार्थ सहयोग के द्वारा ये योजना पूर्ण सफल होगी तथा आयुर्वेद का कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम अथवा किसी और माध्यम से उनको ये
अगर निर्देश नहीं दिया है कि वो हम वहाँ क्या करेंगे जाकर के और किस तरीके से करेंगे, किस आधार पर करेंगे और किन ग्रंथों के आधार पर करेंगे, तब तक उनके जाने की घोषणा सार्थक नहीं होगा। मैं इस बात का सहमत हूँ, कहना चाहिए महर्षि जी ने सर्वप्रथम जो बात कही थी उसमें उन्होंने ये स्पष्ट किया था, उन रिटायर्ड प्रोफेसर्स को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में महर्षि विश्वविद्यालय में रखा जा सकता है, ब्राजील यूनिवर्सिटी के अंदर रखा जा सकता है। इसी रूपरेखा के साथ में अंत में यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन करने से पूर्व विदेश में जाने वाली इस टीम के लिए आयुर्वेद का गौरव बनाए रखें, आयुर्वेद का सम्मान बना रहे, इसके लिए एक प्रकार की रिहर्सल के रूप में एक वर्कशॉप 3 दिन का या 5 दिन का बना लिया जाए। उससे जाने से पहले वह सारा सेटअप करें और एक ही प्रकार की पद्धति से वहां पर आयुर्वेद को प्रस्थापित करें, यह मेरा निवेदन है। इसी के लिए पुनः मुझे समय दिया जाएगा उसके लिए आभारी हूँ। परमादरणीय श्रद्धेय महर्षि जी एवं विद्वद् वृंद, मेरा इस विषय में आपसे एक प्रार्थना है कि जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं या विदेश में हमारी इस आयुर्वेद को प्रकाश में लाना चाहते हैं, इससे बड़ी हमें और कोई इससे बड़ी प्रसन्नता की बात नहीं हो सकती। लेकिन उसमें जैसा कि त्रिगुणा जी ने कहा है, हमारे देश की भाषा, हमारे देश का ये आयुर्वेद, ये उसी संस्कृत के रूप में होना चाहिए। उन्हें भी संस्कृत का ज्ञान दिलवाना चाहिए और ये 3 महीने वाली जो ट्रेनिंग है, इस प्रकार की छोटी सी ट्रेनिंग नहीं देनी चाहिए। क्यों? कि इससे क्या होगा, इससे आयुर्वेद का ह्रास होगा और वो ये समझेंगे कि बस ये 3 महीने लायक ही है और 3 महीने में उसका विद्वान बन सकता है, जहाँ की कितने ही वर्षों तक निरंतर अध्ययन अध्यापन करने के पश्चात भी आयुर्वेद के विद्वान बनने में कितना कठिन और कितना परिश्रम करना होता है। तो ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन ये है कि जो व्यक्ति एक तो प्रायोगिक रूप में यहाँ करके बता दे जो कुछ वो वहाँ करना चाहता है, एक तो उस व्यक्ति को वहाँ भेजा जाना चाहिए। दूसरा निवेदन ये है कि वहाँ के किस किस प्रकार के रोग हैं, उन रोगों में हमारे यहाँ कैसे सामंजस्य से बिठाया जा सकता है और उन रोगों के विषय में जब तक हमको ये जानकारी नहीं हो तब हम उसकी औषधि यहाँ तैयार कर लें या उसके विषय में ये जानकारी कर लें कि वहाँ ये रोग होते तो उसकी ये औषधि देने से इस प्रकार का लाभ होगा। उसका यदि प्रायोगिक रूप में मैं निवेदन करूंगा कि यदि प्रायोगिक रूप में यहाँ एक बार देख ले और देख करके फिर विदेश में उसका को बताए तो ज़्यादा उपयुक्त होगा। क्योंकि सन 1963 में अमेरिका से एक आयुर्वेदिक कॉलेज जयपुर में एक डेलीगेशन आया था और उसने कहा हम शुद्ध आयुर्वेद की औषधियाँ चाहते हैं कि शुद्ध आयुर्वेद के द्वारा कहाँ चिकित्सा होती है। तो सारे भारतवर्ष में घूमे, उनको किसी ने ये बताया कि जयपुर में आयुर्वेद शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा होती है। तो वो यहाँ आए, उसमें हमारे महारानी मसूदा थी, वो उनके डेलीगेशन के साथ थी। उन्होंने यहाँ हमारे कॉलेज में और चारों तरफ आतरों को देखा आयुर्वेद की दवाइयाँ, श्वास कुठार, श्वास में लिखा हुआ है और अन्य अन्य औषधियों को देखने के पश्चात उन्होंने कहा भाई हमको तो संतोष नहीं हुआ, यहाँ भी शुद्ध आयुर्वेद से चिकित्सा नहीं होती।